ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार आप महा कवरेज देख रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि रुझान अब लगातार सामने आ रहे हैं। करीब 210 सीटों पर रुझान सामने आया है, जिसमें बीजेपी 105 जबकि कांग्रेस अब फिसलकर 92 सीटों पर बढ़त बनाते दिखाई दे रही है। यानी पल पल तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला फिलहाल चल रहा है। हालांकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, अभी इन रुझानों के नतीजे में तब्दील होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, यानी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। 210 सीटों पर रुझान आए, जिसमें बीजेपी बढ़त बनाते दिखाई दे रही है, जबकि 92 सीटों पर बढ़त के साथ कांग्रेस आगे। बिल्कुल, तो 92 सीटों पर बढ़त के साथ कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी शतक लगाते हुए दिखाई दे रही है, 105 सीटों पर आगे और 36 मतगणना केंद्रों पर लगातार वोटिंग जारी है। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 210 सीटों पर ये जो रुझान आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है। हालांकि ये रुझान है, ये शुरुआती रुझान है, नतीजों में तब्दील होने में थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, हम लगातार रुझान सामने बता रहे हैं। 210 सीटों पर रुझान, जिसमें बीजेपी बढ़त बनाते दिखाई दे रही। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके दावों में आखिर कितना दम है। नतीजों का इंतजार बेसब्री के साथ किया जा रहा है। वोटों की गिनती का काम सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चले, सभी मेहमान हमारे साथ बने हैं। मैं विक्रम किलपाड़ी जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, दावे जैसे आपने बीजेपी के भी सुने, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से भी आप दावे सुन रहे हैं कि सभी के दावे अपने हैं। एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त जोड़ रहे हैं। विक्रम जी, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे। स्टीफन डेविड साहब हमारे साथ जोड़ रहे हैं। हाय स्टीफन, आपको क्या लगता है कि अभी जो बीजेपी लीड में है, विल इट बी एबल टू कीप अप दैट लीड? See, right now the advantage, as of now, advantage is still Congress because they're already ahead in about 90 plus seats, and BJP is about 75 plus and JDS 20 plus. Looks like the celebrations at the Congress party has already started. Because of the fact in Karnataka, there's always this thing about anti-incumbency, which seems to have worked this time. As of now, I can predict that there is a good chance that the Congress might actually pull off a victory, crossing that 113 number. But again, elections are always about surprises, so we will have a clear picture after maybe another hour or so. Okay. But as of now, in this race, Congress is leading. Right now, it's leading. There was a statement from Ashok. Situation. There was a statement from Ashok saying, whatever happens, BJP will win. They have other methods to win. What do you make of it? So what they're saying is basically, if we are stuck for that magic number, we will use our own plan B. Like we have seen what their plan B was last time. Now their plan B can be, interpreted in many ways. Either you can dangle the carrot or you can dangle the stick. Either it is a laddi or a sweet. So that is what he means by plan B. Okay. But that is only if there is a possibility of a hung verdict. Now, that doesn't seem to be the case because the Karnataka voters, they want a stable government. The only time in Karnataka's, many years of history, there are only 4 chief ministers who have completed 5 years plus. Starting with Nijalingappa, the Lingayat Chief Minister in 1962 to 68, who completed 5 years. And then after that, Devarajars, who completed 5 years. Then Ramakrishna Hegde, 2 terms he completed 5 years. And the last time we had somebody who completed 5 years was Siddaramaiah during the 2017. After that, every chief minister has not completed. S.M. Krishna also did 4 years plus. Okay. Also, up north, there was this sense that the Congress had scored a self-goal by saying it will ban the Bajrang Dal. They thought... what that was wrong. Whatever Congress did, now they are saying, no, what we meant was this, but what was communicated was this. What they are saying is it was lost in translation.
but once you communicate and once that message goes out, then politics is all about the leveraging. When somebody said chai wala, Honorable Prime Minister took it up and then it made an election issue. Yes. Anything you say can be interpreted in any way because that is politics. Now they are saying, no. What we meant was we will ban the Bajrang Dal. Nothing to do with If there is Bajrang need Dal. to. It became too late, na? So Yeah. by the time the damage is done. How do you think the Muslims are voting this time? Muslims have always voted for their, whatever the cleric, the leader will say. Now, traditionally they have always been with the Congress, and for a short while they moved closely to the JDS, the Devegowda Kumaraswamy. चलिए देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब बीजेपी 89 सीटों पर बढ़त बनाते दिखाई दे रही, तो कांग्रेस उछाल की तरफ 113 सीटों पर रुझानों में अब कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है और रुझान लगातार अब सामने आ रहे हैं, जिसमें अप एंड डाउन की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। कभी बीजेपी बढ़त बनाते दिखाई दे रही है तो कभी कांग्रेस, यानी कांटे की टक्कर इन दोनों दलों के बीच में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर दोनों दलों के बीच में देखने हो, उसका कौन क्या बिगाड़ेगा, वो राष्ट्र निर्माण के काम में निकला है। आज कर्नाटका चुनाव का भी रिजल्ट आना है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 150 सीट लाएंगे और हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। भाई, जनता जिसको वोट देगी, अब हाथ कंगन को आरसी क्या, लेकिन धीरेन्द्र बाबा किसी पार्टी के नहीं हैं। सत्ता किसी की बने किसी की ना बने, उससे ज़्यादा जरूरी है भारत के सनातन, और सनातन से पहचान है भारत का। जब सनातन गिरेगा, उन्होंने कहा 80 और 20, जब 20 है तब तो ये दुर्दशा है सरतन से जुदा का। अगर आगे होगा तो क्या होगा, और भारत की पहचान भी मिटेगी, लोकतंत्र भी खतरे में पड़ेंगे जब सनातन की जनसंख्या। नीतीश कुमार एक आखिरी है, नीतीश कुमार गए थे महाराष्ट्र, गए थे नवीन पटनायक से, वैसी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उन्होंने तो कह दिया कि कोई तीसरा फ्रंट नहीं होगा, मोदी से भी मुलाकात कर ली। तो इनकी तो दावा जिस तरीके से ये कर रहे हैं, तो दावा कहीं ना कहीं फ्लॉप होते दिख रहा है। अरे भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई किसी को मना करेगा। बेचारे 2010 में भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ही बीजेपी से अलग हुए थे, और 2022 में भी बीजेपी से अलग हुए हैं प्राइम मिनिस्टर बनने की। एगो गाना नहीं है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। या तो गिरिराज सिंह को आप सुन पा रहे थे, उनकी तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है और एक बार फिर कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। शायद गिरिराज सिंह भूल गए कि आज तो नतीजों का दिन है, वोट तो पड़ चुके, आज तो जनता का फैसला सामने आने जा रहा है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं डॉक्टर अरुणेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात जो कर रहे थे उसको पूरा कीजिए कि खाका क्या है। घोषणा पत्र मत पढ़िए, कैसे पूरा करेंगे, क्या विजन होगा बेरोजगारी दूर करने का? देखिए, सबसे पहले तो अगर सरकार बनती है, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि मनोज जी डाउट है क्या अभी कोई आपको? नहीं, देखिए डाउट हमें नहीं है, लेकिन अगर सरकार मेन बात ये होती है कि जब तक फैसला नहीं आ रहा है तो तब तक चलिए, आशीर्वाद तो अभी आपने भी दिया था। बात क्यों होनी चाहिए। हालांकि सरकार हमारी बनेगी और सरकार बनने के बाद जो हमारे जो 2-3 मुख्य चीजें हैं, एक तो पहली सुनिश्चित ये की जाएगी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो। दूसरा है कि जितने भी सरकारी पद खाली हैं तो उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके सबसे पहले के 3 महीने में उन पदों को जो है उनकी नियुक्ति अतिशीघ्र की जाएगी, जिससे कि जो वहां पे युवा वर्ग परेशान है रोजगार की समस्या से, तो उसके रोजगार की सुनिश्चिति की जाए। तीसरा जो किसानों की समस्या है, किसान
की समस्या भी एक अहम मुद्दा है। किसानों को कई बार ऐसा होता है कि मौसम कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो बेचारा जो किसान है वो मारा जाता है। तो उसके लिए एक सुनिश्चिति की जाएगी कि उसका कम से कम नुकसान हो। चले खैर, उसकी किसानों फसल की का स्थिति तो वाजिब पूरे दाम दिया देश भर जाए। में बदहाल ही कही जा सकती है जी, कि हर बिल्कुल, जगह इस तरह की बिल्कुल। समस्याएं रहती हैं। दावे भले ही कितने बड़े बड़े किए जाते हों, लेकिन जब आकलन किया जाता है तो आकलन में वो नतीजे नहीं दिखाई देते जो दावों में दिखाई पड़ते हैं। मैं विक्रम खिलवाड़ी साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही जेडीएस को नकार रही हो कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी की तरफ से भी जैसा कहा जा रहा है कि भाई मुकाबला तो हम ही जीतते दिखाई दे रहे हैं, अगर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बनते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग की कितनी संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं? देखिए, ये इस पे तो कौन सी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी उसी पे गेम है। कांग्रेस है तो फिर नंबर्स के डिफरेंस पे भी देखना पड़ेगा। अगर बीजेपी इज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो इट इज वेरी इजी फॉर द बीजेपी टू डू इट। नहीं, अभी रुद्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि अगर 80 सीटों तक बीजेपी पहुंच जाती है तो फिर कांग्रेस के लिए तो मुश्किल है। तो यही तो स्टीफन डेविड भी यही बोल रहे थे कि प्लान बी बीजेपी का है कि बाय एमएलएस एंड हैव देम ट्रांसफर। ठीक है, आपका रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सभी सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। 224 विधानसभा सीटों में 104 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 104 सीट पर कांग्रेस भी आगे चल रही है, यानी कि कांटे की टक्कर से कही जा सकती है। रुझानों में जेडीएस 16 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य 0, यानी कि खाता भी यहां पर खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अन्य का। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला है, कांटे की टक्कर चल रही है। सभी सीटों पर रुझान सामने आए हैं और ये रुझान ये बता रहे हैं कि जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि काफी टफ फाइट है, काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तमाम मुद्दे हावी रहे, तमाम मुद्दों पर वोट मांगे गए। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा, मुद्दा ये भी उठा कि आखिर क्यों सीएम बदला गया, मुद्दा ये भी उठा कि मुस्लिम आरक्षण पर जो पॉलिटिक्स हुई 80-20 जिसका जिक्र अभी गिरिराज सिंह कर रहे थे, हनुमान के नाम पर वोट मांगे गए, बजरंग बली के नाम पे वोट मांगे गए, किस तरह से बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा गया, ये तमाम चीजें सभी के सामने है। लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि इन मुद्दों का कितना प्रभाव पड़ा है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिन जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही थी, कौन कितना बखूबी उन मुद्दों को उठा पाया। एंटी इनकम्बेंसी जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा वक्त में सरकार है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा, वो दिक्कतें क्रिएट कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये भी यहाँ पर देखना दिलचस्प है। हालांकि 4 दशकों का जैसे बार बार जिक्र हाँ। इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या ये मिथक टूटेगा, बीजेपी इस बात को लेकर जरूर भरोसा कर रही है क्योंकि हाल में सत्ता में वही है और उसको ये लग रहा है कि इस बार ये मिथक तोड़ने में कामयाब रहेंगे। लेकिन डॉक्टर अरुणेश जी कह रहे हैं कि वैसे तो मिथक तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन ट्रेंड बरकरार रहेगा, इतनी आसानी से ट्रेंड बदलने वाला नहीं है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं रुद्र प्रताप सिंह जी आपके पास आऊँगा। जो ट्रेंड की बात कही जा रही है, कितनी संभावनाएं आपको लगती हैं या मिथक टूटेगा? देखिए, अभी तो चीज़ें फंसी हुई हैं, कभी बीजेपी आगे हो जा रही है, कभी कांग्रेस। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मेरी समझ में आ रही है कि बीजेपी बेहतर स्थिति में है कर्नाटक में, जैसा उसको नहीं होना चाहिए था बाकी अनुमानों के हिसाब से, क्योंकि अगर बीजेपी 100 के आसपास अभी चल रही है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा कर रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इस चुनाव में कांग्रेस के पास पाने के लिए सिर्फ कर्नाटक की सरकार है, क्योंकि जैसे ही इस चुनाव के वो बाहर आते हैं वैसे उन्होंने बीजेपी को बहुत कुछ दिया है आगे के राज्यों के लिए। क्योंकि बजरंग दल का जो उन्होंने बैन की बात करी है उसको कर्नाटक में बीजेपी कितना भुनाती है वो एक अलग चीज है। लेकिन जैसे ही वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आएगी उसके बाद वो कांग्रेस को उसके सामने खड़े नहीं होने देगी इसी मुद्दे पर, क्योंकि बीजेपी का जो हिंदुत्व का मुद्दा है। यानी टाइम कम मिल पाया, आप कह रहे हैं? टाइम कम के साथ साथ जैसे वहाँ पर और भी बहुत सारी सिचुएशन है जिसको बीजेपी उस तरह से एड्रेस नहीं कर पाई और उसके एंटी इनकम्बेंसी थी, वहाँ की लोकल लीडरशिप थी। लेकिन जब वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आ जाएगी इसी चीज को लेके तो वो बहुत बड़ी ताकत उसकी होगी आने वाले चुनाव के लिए। और 24 के लिए तो उन्होंने इनको बीजेपी को इतना बड़ा हथियार दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस इतनी अपनी मतलब इतना बड़ा
नुकसान करके अगर कर्नाटक में सरकार नहीं बना पाती है तो उसके हाथ कुछ नहीं आता है। तो इसलिए उसको किसी भी हाल में इस कर्नाटक में सरकार बनानी ही होगी। और नहीं, भी पूर्ण साथ तो बहुमत के दोनों साथ। दलों की दाव पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र जैसे आता है बार बार कि प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ रोड शो या फिर जो रैलियां की हैं उसके बाद माहौल काफी परिवर्तन हुआ, और आपने जिस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली और रोड शो के बाद तकरीबन 20 से 25 सीटों से ज्यादा पर असर पड़ सकता है। हालांकि आज तो पिक्चर पूरी तरह से क्लियर भी हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर अवनीश जी, आपको क्या लग रहा है? अभी तो 50-50 का मुकाबला फिर देखने को मिल रहा है, यानी उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इसीलिए हम सुबह से कह रहे हैं कि धड़कनें तो दोनों तरह की बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल धड़कनें बढ़ी हैं, बढ़ना भी लाजमी है, बड़ा दिन है। और कर्नाटक जो है बीजेपी के लिए कई मायनों में अहम भी है, क्योंकि दक्षिण भारत में देखा जाए तो सिर्फ अगर प्रेजेंस देखी जाए बीजेपी की तो कर्नाटक में ही प्रेजेंस रही। और जिस तरीके से इन्होंने पिछली बार विधायकों की खरीद फरोख्त की थी तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। कुछ वोटर्स के दिमाग में ये भी चीज है जिसको मैं पहले से ही बराबर कहता रहा हूँ कि इसी वजह से इस बार जो जनता है वो क्लियर मैंडेट ही देगी। डर लग रहा है आपको? जी, डर लग रहा है आपको? नहीं, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि हमारी सरकार चलिए आपका रुख करेंगे, लेकिन इस और 11 बीच बजे तक पिक्चर लगातार अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। रुझानों में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक पीछे है इस वक्त, जो खबर आ रही है। बता दें आपको कि रुझानों में HD कुमारस्वामी श्री रामुल पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रुझान ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल ये पीछे ही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक भी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के लिए जाहिर तौर पे ये दिक्कतें बढ़ा रही है, क्योंकि अगर बड़े नेता के बेटे पीछे चल रहे हैं जिनका अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है और कर्नाटक से ही आते हैं, जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि एक बेहतर वोट बैंक की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी। चुनावों से एंड पहले ही उन्हें कमान सौंपी गई, और ये सोच के भी कि कर्नाटक में कांग्रेस बढ़त बनाएगी, कांग्रेस बेहतर करेगी। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अवनीश जी, सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। लग रहा है, देखिए, कर्नाटक में ये उम्मीद कर रही थी क्या कांग्रेस पार्टी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे पीछे चलेंगे, जगदीश शेट्टार भी पीछे चल रहे हैं? नहीं, ये सभी लोग चुनाव जीतेंगे। अभी ये शुरुआती रुझान है और मुझे लग रहा है अभी शायद 10 या 12 जो राउंड है उनकी गिनती हुई होगी। तो लगभग 1/3 या 1/4 प्रक्रिया ही अभी पूरी हुई है और 11 बजे तक पिक्चर लगभग क्लियर हो जाएगी। और जितने भी हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ, वो सारे जीतेंगे। क्योंकि जो अभी मैं बातें सुन रहा था कि एक जो लोकल लीडरशिप वाली बात है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास वो लोकल लीडरशिप का अभाव रहा। अगर बात की जाए तेजस्वी सूर्या की, तो तेजस्वी सूर्या को जो सोनिया गांधी को चुनाव प्रचार के लिए क्यों बुलाया गया? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? आपके पास तो लोकल लीडर की भी भरमार है, जैसा कि आप कह रहे हैं। राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे थे, लगातार कांग्रेस की तरफ से कोशिशें की जा रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहीं से हैं, लेकिन एंड वक्त पे सोनिया गांधी को उतारा गया। पिछले 4 साल से तो सोनिया गांधी नदारद थी, चुनाव प्रचार में नहीं उतर रही थी, सेहत खराब का हवाला दिया जा रहा था। फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? क्या लगा कांग्रेस पार्टी को कि अगर सोनिया गांधी को नहीं उतारेंगी चुनाव प्रचार में तो जीतना मुश्किल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में भी सोनिया जी 2-3 बार उस यात्रा में शामिल हुई हैं। और कर्नाटक की बात की जाए तो जब हमारी पार्टी को जरूरत पड़ी है तो कर्नाटक की जनता ने हमेशा हमें सर माथे पे रखा है। चाहे वो इंदिरा जी का समय हो, चाहे सोनिया जी का समय हो। सोनिया जी बेल्लारी से एक बार चुनाव लड़ी थी और जीती थी। और निश्चित तौर पे इस समय अगर हमें दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो उसके लिए कर्नाटक जीतना हमारे लिए कई मायनों में अहम है, क्योंकि कर्नाटक में जो हमारी स्थिति है वो काफी मजबूत है। तो इसी वजह से सोनिया जी का जो है एक नैतिकता के आधार पे और एक जो अपनापन है, जो कि कई 2-3 पीढ़ियों का एक लगाव रहा है कर्नाटक की जनता से, तो इस वजह से सोनिया जी वहां चुनाव प्रचार में गई थी। क्योंकि बेल्लारी से सोनिया जी वहां से चुनाव लड़ी भी थी, जीती भी थी। इंदिरा जी भी चिकमंगलुरु से चुनाव जीती थी। जब इंदिरा जी के खिलाफ आपको याद होगा 70 के
जो दशक था, आखिरी दशक में एक विपक्षी लहर आई थी और कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी जो है वो अल्पमत में थी, तब वहां से फिर हमें बढ़त मिली थी। तो निश्चित तौर पे जो सोनिया जी का चुनाव प्रचार रहा, वो एक कहते हैं ना कि जो एक भावनात्मक लगाव है, तो ये उस बात तो फिर दृष्टि से बीजेपी वो पर भी चुनाव लागू लड़ने होती है, फिर वो मिथक का जिक्र हो जाएगा कि हर 5 साल में तो सत्ता का परिवर्तन होता ही रहा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन होता रहा है। मैं कह रहा हूं कि इसको उस दृष्टिकोण से ना देखा जाए। जो सोनिया जी का प्रचार रहा, सोनिया जी का सिर्फ एक दिन वो एक रैली में गई और उसके पीछे जो वजह है वो मैं आपको बता चुका हूं। बाकी जो अहम रोल चले, था, यानी आपको लग वो रहा है कि अहम ट्रम्प रोल कार्ड के वहां तौर पर उनको इस्तेमाल किया गया और उसका असर भी देखने को मिलेगा नतीजों में। हालांकि अभी रुझान आ रहे हैं और रुझान तो अभी उतार चढ़ाव वाली स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन जो दक्षिण के द्वार की बात हो रही है कि जो बीजेपी के लिए भी अहम है और डॉक्टर अवनीश भी बार बार कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कर्नाटक चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। मैं पंकज सिंह जी आपके पास आऊंगा, कितना असर पड़ेगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी चुनाव है, अगर कर्नाटक हारे तो दक्षिण का गेट बंद आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी के लिए? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी की उपस्थिति वैसे भी बिल्कुल नहीं, सॉरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो बीजेपी की उपस्थिति वैसे भी नहीं है। तेलंगाना तो बीजेपी की 4 सीटें हैं, मगर आंध्र प्रदेश में बीजेपी की कोई सीट नहीं है लोकसभा की। आंध्र प्रदेश के तो चुनाव भी लोकसभा के साथ ही आते हैं। जीत के बाद उत्साह तो बढ़ेगा ना? उत्साह तो जीतते तो नहीं दिख रहे हैं, खैर तो उत्साह तो मुझे लग रहा है नहीं बढ़ेगा। और कर्नाटक की अगर बात करें, कर्नाटक की परिस्थिति तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की परिस्थिति काफी अलग है। वहाँ की कास्ट पॉलिटिक्स अलग है, वहाँ की फाइनेंशियल पॉलिटिक्स अलग है और वहाँ की कम्युनिटी पॉलिटिक्स भी अलग है। तेलंगाना में मुस्लिम पोलराइजेशन होता भी है और आंध्रा में तो बिल्कुल नहीं होता। और आंध्रा में अभी पॉलिटिकल वैक्यूम दिखाई भी नहीं देता, हालांकि तेलंगाना में पॉलिटिकल एक वैक्यूम है अपोजिशन पार्टी को, कांग्रेस वहाँ पे काफी दूर है। और अगर बात करें तो अभी मनोज पंडित जी ने एक बात कही थी कि हिंदी की वजह से हिंदी वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है और मोदी जी अपनी बात पूरी तरह रख नहीं पाए ट्रांसलेटर की वजह से। ये वाली बात तो कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस की लीडरशिप राहुल गांधी भी कौन सी करना बोलूंगा। और अगर बात करें भाजपा की कमियों की, तो मुझे 3 कमियां दिखाई दी भाजपा की कैंपेन में कर्नाटक। पहली कमी थी कि भाजपा में आपसी कला थी जो और राज्यों में दिखाई नहीं देती। यहाँ पे जगदीश शेट्टार लड़ रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पी एल संतोष जी उनके लिए बोल रहे थे और बहुत सारे लिंगायत लीडर छोड़ के गए। आज एक बात ये भी थी कि लिंगायत कम्युनिटी के बीच ब्राह्मण लीडरशिप जो है बीजेपी की, जो 3% ब्राह्मण है, वो कहीं ना कहीं लिंगायत लीडरशिप को पीछे धकेल रही है। पहले उन्होंने येदियुरप्पा को हटाया, उसके बाद जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सवदी को पार्टी से निकालने में उनकी योगदान रहा। आपने तेजस्वी सूर्या का नाम लिया, दिल्ली से बैठ के जब हम देखते हैं तेजस्वी सूर्या में बहुत बड़े लीडर दिखाई देते, मगर ग्राउंड में जाके हमने बात की तो लिंगायत कम्युनिटी, ओकालिका कम्युनिटी के बीच में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है सूर्या की। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं इज ए गुड ओरेटर, पर मैच्योरिटी की जब बात करते हैं तो इज नॉट अ मैच्योर पॉलिटिक्स। ये वाली बात भी वहाँ पे चलती है। तो राज्य में तेजस्वी सूर्या की उतनी लोकप्रियता हमें तो कम से कम नहीं दिखाई, जो दिल्ली से दिखाई देती है। लेकिन अगर कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए, अगर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो जाती है तो इतना आसान होगा क्या? भले ही सिद्धारमैया के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया हो, मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा उनका रखा गया हो, लेकिन हसरत तो डीके शिव कुमार साहब भी जाहिर कर चुके हैं मुख्यमंत्री बनने की। ये बीजेपी के कैंपेन की राजस्थान वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? हाँ भाई, अगर कोई ऐसी स्थिति हुई। ये बीजेपी कैंपेन की खासियत रहती थी कि इंटरनल पॉलिटिक्स वो कंट्रोल कर रखते थे, मगर इस बार उल्टा हुआ है। इस बार हुआ क्या कि कांग्रेस में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। चलिए आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। 84 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस 122 सीटों पर, यानी कि अंतर काफी अब दिखाई दे रहा है। 18 सीटों पर जेडीएस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अन्य नहीं अभी आगे है किसी भी सीट पर। फिलहाल आपको बता दें कि रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो बीजेपी 84 और कांग्रेस 122 सीटों पर आगे है। फिलहाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे। जेडीएस 18 सीटों पर आगे बढ़ रही है और इसी के साथ यहां एक ब्रेक का वक्त हो गया। जल लौट